English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. Yes, I could talk in English. No, a horse should not eat meat. No, a horse should not eat meat. Yes, I should cook meat. Yes, I could cook meat. No, a tree should not bark. My aunt has 3 children. A watch has 3 hands. Watch के hand का मतलब है घड़ी का कांटा. My room has many windows. A cow has 4 feet. The government has animals in the zoo. My brother has books in the bag. The school opens at 10 o'clock. The school closes at 5 o'clock. I study English. The boy drinks milk. The shepherd boy was looking after his sheep. He cried out the wolf one day. The wolf killed some sheep and ran away. नंबर 1 कैसा लगा? बी कैसा लगा? सी कैसा लगा? ठीक है, आगे देखिए. बैरी का मतलब अपना से फायर का, से लर्ट का, मून का, कैलप का, डाइवर्ट का, एलिफेंट, फ्यूजिटिव, कैरेट, ह्यूमिड, inseparable, jeopardize, legislation, Enact. medium, Means. nominal. Only for name. नंबर 1 Inspirable. नंबर 2 Very. सही बोले हो. नंबर 3 सही बोले हो. नंबर 4 मीडियम. नंबर 5 नॉमिनल. 6 फ्यूजिटिव. 7 एलिफेंट. 8 पून. 9 गैरेट. 10 ह्यूमिड. 11 बैरी. 12 से फायर. 13 सही बोले हो. 14 के लेफ्ट. 15 जो पारडाइज. एंटोनिम्स का किताब निकालो. चैप्टर का नंबर बताओ. 5 मिनट में रिपोर्ट करो. यार निकालना उकालना सब बैग से निकाल के रखो. तो घर में फुर्सत नहीं मिल ले मिला. Ceremonias informal, extraordinary, moderate, casual, deliberate, indirect, exonerate, overbearing, modest. The पानी में दम पूरा सब क्यों था
हाँ बना दिए हैं, ऐड कर देंगे शूटिंग। ये दोनों को देखो ऐड किए हैं ना, ठीक है लिए रोज देखने टेलीग्राम उधर टेलीग्राम चलाता है, देखना उसमें रोज का डाल दिए हैं। एक का बोलिए, एक का सेकंड है, दो का सी है, तीन का ए है, चार का सी है, पाँच का बी है। बंद कर लो इसको। अब कहाँ चले बताओ? ऑटो ट्रांसलेशन में चैप्टर का नंबर बताओ। 12 में पहुंचो। Can you understand that? Could you understand the lesson? Can they cut the tree? Could the boy reach अथवा arrive? Should we keep a car? Would England win the cup? Should children eat toffee? Can the thief break the lock? Could Sachin score run? Again, you can't read English. He could not pass. You should not abuse. The boy cannot speak. You could not write a letter. I should not kill time. The shopkeeper cannot increase price. He could not recognize me. You should not sell the book. You may not smoke cigarette. आइए न्यूज़पेपर उसी पेज में जहाँ कल ऊपर से दूसरा और बाएं से पहला कौन सा न्यूज़ है बता? ऊपर से दूसरा, बाएं से पहला इंडिया मॉनिटर। अब वो बंद करके शुरू हो जाओ, 7 मिनट में रोकेंगे। क्या है? पीछे या पीछे? जाओ घर चले जाओ, आराम करो। एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप सुनता रहूँगा। सारा एसी पंखा तो सब एक जगह लगा है। भाई तो उसको एसी पंखा तो एक जगह लगा है। घरमा में के कोई एसी हो? दूगो। एसी बता क्या रहे हो? हम जानते हैं कौन कितना पानी में है। एसी के अलावा पंखा चाहिए, पंखा भी चला बगल वाला पंखा भी चाहिए। 6000 में हाथ ठीक हो रहा है। वो देखे वो शक्ति कपूर का बात कर रहा, शाहरुख खान इंडिया ऑफिशियल स्टेट सिक्योरिटी What is assessed? What is assessed? Time to time. What is assessed? Time to time. Number 2. Fair day. Fair day. Planning to.
where were they planning to protest? Planning to protest. Number 3, whose intervention are they seeking? Whose intervention are they seeking? अगला, what is being allowed? What is being allowed into Pakistan? What is being allowed into Pakistan? अगला, who visited Delhi? Who visited Delhi this week? Who visited Delhi this week? What Okay, is the time? we'll start. What is the system in an official said secretly? What is the system? Here they are planning to protest. तहरीके is plan to protest. Where they are who intervention are they seeking? Who intervention are they seeking? Who intervention are they seeking? India.
What is being allowed into Pakistan? Uh, who visited Delhi this week? किनका बाकी है? जल्दी करें, समय समाप्त हो चुका है। A spokesperson visiting Delhi this week. Iran Foreign Minister Hussain आंसर देखिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इज असेस्ड टाइम टू टाइम। अगला, they were planning to protest outside the High Commission in Islamabad। अगला, they are seeking intervention of the UN। अगला, only some Indian pharmaceutical goods are being allowed into Pakistan। अगला है, the foreign minister of Iran visited Delhi this week। बंद करो, ग्रामर की कॉपी निकालो। अगला पॉइंट कल के अंतिम पॉइंट की तरह लिखा जाएगा, एक जगह अपने हिसाब से लिखिए। कल जैसे लिखे थे अंतिम पॉइंट उसी प्रकार से लिखने से जगह अपने हिसाब से चुन लीजिए और लिखिए। आज के पॉइंट का नंबर 5 कितना है? 8। यस सर 8। ऊपर से 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा, बाएं साइड में 8 नंबर। पॉइंट का नाम है वर्क, WORK। जहां भी 2 निशान खींचो, जैसे कल खींचा था 2 निशान। नमस्ते रमेश, देखो छोड़ दो। वर्क जब क्रिया का काम करता है, वर्क का काम करता है, तो उसका मतलब होता है कार्य करना। लेकिन वर्क नाउन भी हो सकता है। जब वर्क नाउन का काम करेगा तो इसका 2 अर्थ निकलेगा, दोनों का अलग अलग एरिया होगा, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए पढ़ाया जा रहा है। वर्क का नाउन के रूप में एक अर्थ होता है कार्य और एक अर्थ होता है कलाकृति, किसी कलाकार की कलाकारी, किसी आर्टिस्ट का आर्ट,
किसी लेखक का लेखन आदि आदि। तुम खड़ा होकर समझाओ जो हम बोल रहे थे, व्हाइट शर्ट वाला। हाँ खड़ा हो, बोल रहे व्हाइट शर्ट जो हम बोलो समझाओ। उसका अर्थ होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है? जो किसी कला की तरह किसी आर्टिस्ट का कलाकार किसी पार्टी का आर्टिस्ट का क्या करो, अगला बार बाहर बैठा दे, बैठ जाओ। फिर सुनो, जब वर्ग नाउन का काम करेगा तो उसका दो अर्थ होगा। एक अर्थ होगा हिंदी में कार्य, उर्दू में कार्य। वर्ग का दूसरा अर्थ होगा किसी कलाकार की कलाकारी, कलाकार की कलाकृति, कलाकार की रचना, कलाकार का लेखन। अंतर, जब वर्ग का मतलब होगा कार्य तो एक रहेगा तब भी वर्ग, 1,00,000 रहेगा तो भी वर्ग भूल से इस मत लगा। नमूना के रूप में हम बोलेंगे तुम रुकना जी, आज हमको तुमसे काम, तो वर्ग, ये लड़का बोलेगा आज नहीं रुक पाएंगे सर, आज हमको सैकड़ों काम है, तो भी वर्ग। तो जब वर्ग का मतलब होगा कार्य, 1 रहेगा तो भी वर्ग, 100 रहेगा तो भी वर्ग, 1,00,000 रहेगा तो भी वर्ग। लेकिन अगर उसी वर्ग का मतलब हो कलाकृति, रचना, कला, लेखन आदि आदि, तो 1 रहेगा तो वर्ग और 1 से अधिक रहेगा तो वर्ग ऐसा लगेगा। जैसे द गोदान, नाम सुना है गोदान का? तो द गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद, परंतु द गोदान एंड द गवन आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद। आधुनिक में आ जाओ, द 3 इडियट्स इज अ वर्क ऑफ आमिर खान, लेकिन 3 इडियट्स एंड द लगान आर वर्क्स ऑफ आमिर खान। लेकिन अगर बोले कि आज आमिर खान को कोई काम नहीं है तो वर्क, लड़का बोलेगा ना सर आमिर खान को अभी भी लाखों काम है, तो भी वर्क। तो जब वर्क का मतलब कार्य या काम होगा तो सिमिलर, और उसी वर्क का मतलब होगा आर्ट्स, तो सिमिलर भी हो सकेगा, पुलर भी हो सकेगा। दो निशान खींचा था, ऊपर में लिखोगे कार्य, कार्य, कार्य के बगल में ब्रैकेट में लिखो सिंग, SING। सिंग का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल है सिंगुलर में लिखा द मैनेजर told oblique the staff to complete oblique all the works oblique before going home, फुल स्टॉप करो। ये क्वेश्चन सीपी होता है, बतलाओ कहाँ गड़बड़ वर्क होगा, क्योंकि यहाँ मैनेजर बोल रहा है उसके कार्य को समाप्त करने के लिए, और कार्य के रूप में कभी एस नहीं लग सकता है। इस पर हट लिया, जाओ नीचे लिखो, नीचे वाले में रचना, नीचे लिखोगे रचना और ब्रैकेट में लिखोगे सिंग ऑब्लिक फ्लू, सिंग ऑब्लिक फ्लू। कुछ समझ में आया? जैसे जैसे गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद, द गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, द गोदान एंड द गवन, क्या लिखवा दें? इज आर लिख दो। फिर अगला जवाब तो क्या लिखा है? वर्क की वर्क्स ऑफ प्रेमचंद।
वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट भी जो भी नंबर है लोग इसी प्रकार से लिखना है, इससे व्यवस्था अपने हिसाब से कर लिया। यस सर। नाम है वर्ड WORD, पॉइंट का नाम है वर्ड WORD। समझो, वर्ड को जब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अंग्रेजी में किसी को किसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नाउन का, ऊपर में लिखा हुआ और चीज चलना हो तो वर्ड जब नाउन का काम करेगा तो उसका दो अर्थ निकल करके आएगा। वर्ड का एक मतलब है शब्द, जो तुमको पहला भी पढ़ाया गया, और शब्द काउंटेबल है, गिनती हो सकता है, और जो भी काउंटेबल दुनिया में होगा वो सिंगुलर भी हो सकेगा, प्लूरल भी हो सकेगा। जैसे तुम बोलोगे सर हम एक शब्द भी नहीं जानते हैं सर, या फिर क्रिमिनल एक भी शब्द नहीं बोला तो एक, लेकिन तुम्हारे तो जब ऐसे लिखने के लिए आएगा, यूपीएससी में ऐसे लिखने के लिए आता है 300 नंबर का, तो बोलेगा कि 500 शब्द होना चाहिए ऐसे, कितना 500। तो उससे पहले बोले थे एक भी शब्द नहीं जानते और अब बोल रहे हैं 500 शब्द। तो इसका मतलब है कि जो वर्ड का अर्थ होगा शब्द वो सिंगुलर भी हो सकेगा, प्लूरल भी हो सकेगा। तो हम बोलेंगे राम क्या है जी, बोलोगे राम एक शब्द है सर, RAM एक शब्द हुआ, तो राम इज ए वर्ड, लेकिन राम ईट्स मैंगो में 3 शब्द हुआ, तो राम ईट्स मैंगो क्या हो गया, शब्द, यानी कि WORDS। क्लियर? यानी कि वर्ड का जब मतलब होगा शब्द तो वो सिंगुलर भी हो सकेगा, प्लूरल भी हो सकेगा, लेकिन उसी वर्ड का दूसरा अर्थ होता है वचन। एक वचन बहुवचन वाला नहीं, वो वाला वचन, जान जाए पर वचन न जाए। तो जो वर्ड का मतलब होगा वचन, वचन कभी दिखाई नहीं दे, कभी छुआ नहीं जा सकेगा। जैसे मैं वचन देता हूं कि अगर तुमने मेरे अनुसार मेहनत किया तो अंग्रेजी में फेल होने नहीं दो। अब मतलब मेरा वचन दिखाई दिया तुमको, छू पाए लेकिन एहसास तो हुआ हो। तो जिसे देखा नहीं जा सके, छुआ नहीं जा सके, जिसका एहसास हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही दुनिया का इकलौता है जो सिंगुलर जन्मा है, सिंगुलर ही मरेगा। जबकि मटेरियल में प्लूरल भी था, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर है। इसका मतलब है कि जो वर्ड का मतलब होगा वचन तो वो सिंगुलर रहेगा, और जो वर्ड का मतलब होगा शब्द तो वो एक रहेगा, तो वर्ड होगा एक से अधिक रहेगा, तो वर्ड होगा मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकेगा। तो दो निशान खोला होगा, ऊपर में लिखोगे तो वचन, वचन लिख दिया, वचन ब्रैकेट में लिखोगे सिंगल, सिंगल। अब एग्जाम्पल में लिखोगे आई गिव यू ए वर्ड, आई गिव यू अ वर्ड। अब जब नीचे में लिखोगे शब्द, शब्द ब्रैकेट में लिखोगे सिंग ऑब्लिक प्लू, सिंग ऑब्लिक प्लू, लिख दिया। दोनों का एग्जाम्पल लिखवा दे रहे हैं। नॉट ए सिंगल, नॉट ए सिंगल वर्ड, नॉट ए सिंगल वर्ड डिड ही स्पीक, डिड ही स्पीक, नॉट ए सिंगल वर्ड डिड ही स्पीक। क्या पर वर्ड का है ये मतलब एक भी वर्ड नहीं, ए लगा हुआ है। तुमको बताया था ना परसों कि हर काउंटेबल या तो ए लेगा या एस लेगा, एस लेगा तो प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा तो ए लेगा, इसका मतलब है सिंगुलर है, इसलिए वर्ड लगाना पड़ा। अब लोग प्लूरल का ले लो। एग्जाम्पल दूसरी का एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं प्लूरल वाला, 500, 500। अब तुम बोलो क्या लिखवा रहे हैं, वर्ड की वर्ड्स, वर्ड्स आर नीडेड, आर नीडेड इन ए गुड एसे, इन ए गुड एसे। फुल स्टॉप। क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट इसी प्रकार से लिखना है, जगह अपने हिसाब से चुन लो। पॉइंट का नाम है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। समझो, हमने रास्ता बहुत पहले क्लियर किया था, आज काम आ रहा है।
हमने कहा था इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। फिर हमने कहा था उसमें से अधिकतर में मतलब लगभग 80% में बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश करने के बाद अपने आप को अंग्रेजी मान लिया, अपने आप का अंग्रेजीकरण कर दिया। उस पर सारे नियम क्रिया कानून अंग्रेजी वाले लागू होते हैं। इनकी संख्या है 80%। बाकी बचा 20 में से 10% क्लियर किए हुए हैं कि कुछ सब ऐसे हैं जो बाहर से औरों के भांति अंग्रेजी में प्रवेश तो किए हैं, लेकिन वे अंग्रेजी के नियम को नहीं मानते। वे अपना नियम अपने संग अपने साथ लेकर आते हैं, अपने पुराने वाले भाषा का। उसी में था मैन, याद आया? उसी में था वो मैन, ऑक्स आदि आदि। 10% तो 80 10 90 10 बचा हुआ है। 10% शब्द ऐसा है जो बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश तो किया है, लेकिन दोनों नियम को मानता है। अंग्रेजी वाले नियम को भी मानता है और जहां से बिलोंग करता है उस नियम को भी मानता है। उसी में एक बराबर और एक आगे आने वाला वर्ब आदि में देखा जाएगा। नाउन में 2 जगह तुमको मिलेगा। एक शब्द है बराबर। बराबर जो है ईरानियन शब्द है, पर्शियन शब्द है, ईरान से आया है। तो ईरान से आया तो ये भी चाहता तो केवल अंग्रेजी का होकर रह जाता, पूरा अंग्रेजी का नियम लागू करता, जैसे लाठी में लगता है पूरा अंग्रेजी का नियम प्योर बिहारी होने के बावजूद, या फिर पूरा का पूरा ईरान वाला कानून लागू होता नहीं। दोनों नियम को मानता। ब्रदर का मतलब तुम जानते हो। तो ब्रदर जब तक सिंगुलर रहेगा और ऑलराउंडर रहेगा, जहां चाहो लगा। BROTHER अपना भाई के लिए भी ब्रदर और अंडरस्टैंडिंग वाले भाई के लिए भी ब्रदर है। नमूना के रूप में राम वाज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, सगा भाई के लिए ब्रदर। और आई एम योर ब्रदर सगा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाला, तो भी ब्रदर। तो जब ब्रदर सिंगुलर होगा तो ऑलराउंडर होगा, हर जगह काम करे, सगा के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, सौहार्द के लिए भी, मैत्री के लिए भी, एकता के लिए भी ब्रदर काम करे। लेकिन इसका पुल्लर 2 प्रकार से बनता है। पुल्लर में बकेरा, सिंगुलर में 2 बकेरा। सिंगुलर में सगा के लिए भी ब्रदर लगेगा। फिर दूसरे क्या बोलते हैं? राजीव गांधी वाज ब्रदर ऑफ संजय गांधी, सगा भाई, ठीक है। और दिस स्टूडेंट इज ब्रदर ऑफ दिस स्टूडेंट, सगा नहीं है तो यो ब्रदर बोले। सिंगुलर में कोई झमेला नहीं। पुल्लर 2 प्रकार से बनता है। एक अंग्रेजी वाला नियम का पहला नियम एस लगा करके, तो जब ब्रदर में एस लगेगा तो पुल्लर तो बना, लेकिन केवल सगा भाई के लिए प्रयुक्त है। ब्रदर में एस लगेगा, पुल्लर में बनेगा, लेकिन सगे भाइयों के लिए, जैसे राम लक्ष्मण एंड भरत वेयर ब्रदर्स, राजीव गांधी और संजय गांधी वेयर ब्रदर्स। ये ब्रदर में एस लगाने वाला, एस लगाकर पुल्लर बनने वाला सौहार्द में नहीं लगेगा, मैत्री वाले में नहीं लगेगा, समझौते वाले में नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या होगा? अलग व्यवस्था होगा। ब्रदर बोलेगा फिर से ब्रदर और ब्रदर था, सगा भाई में भी ब्रदर लगा, परायों में भी ब्रदर लगा। लेकिन जब पुल्लर बना तो 2 प्रकार से एस लगा के जब पुल्लर बनेगा तो सगे भाइयों का पुल्लर होगा, और जो सगा भाई नहीं है फिर भी पुल्लर है तो उसके लिए पर्शियन कानून लगेगा। और पर्शियन कानून में पुल्लर बनाने के लगता है EN। क्या लगता है? EN। कभी सुना होगा तालिब से तालिबान, आलिम से आलिमान, ब्रदर से ब्रादरान। तो दोनों पुल्लर है, लेकिन दोनों का एरिया बढ़ गया। ब्रदर का एरिया नहीं बढ़ा था, ब्रदर हर जगह लगा था, लेकिन ब्रदर में 2 प्रकार से पुल्लर बना, एस लगा के और ईरान वाला मामले लगा के। तो ब्रदर में जब एस लगा के पुल्लर बनाओगे तो वो सगे भाइयों के लिए प्रयुक्त होगा, और ब्रदर में जब EN लगा के पुल्लर बनाओगे तो सगे भाइयों को छोड़कर अन्य जगह लगेगा। जैसे ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स नहीं, ब्रदर। माय ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रदर्स नहीं, ब्रदर। लेकिन लक्ष्मण भरत एंड राम देयर ब्रदर्स। और ब्रदर आ जाओ तो राम वाज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण एंड आई एम योर ब्रदर। हम सगा नहीं है तैयो ब्रदर, राम सगा था तैयो ब्रदर। प्लूरल में केवल डिफरेंस है। तो प्लूरल में मालूम हो गया होगा, ब्रदर्स लगेगा तो सगा भाई का प्लूरल होगा, EN लगा के बनेगा तो माइनस सगा भाई हो, मतलब सगा भाई नहीं बाकी सब जगह लगे। क्लियर? निशान खींचो। ऊपर में लिखोगे ब्रदर्स और नीचे में लिखोगे ब्रदर में EN।
ऊपर में लिखोगे ब्रदर्स के बगल में रक्त संबंधित भाई, रक्त संबंधित भाई, और नीचे वाले में लिखोगे आपसी समझौते का भाई, आपसी समझौते का भाई। दोनों में ब्रैकेट बंद कर दो। अब बोलो किसका एग्जाम्पल लिखवा दें? ब्रदर्स का तो लिखो राम एंड लक्ष्मण बेयर ब्रदर्स, राम एंड लक्ष्मण बेयर ब्रदर्स। अब लिख लो ब्रदरन का ऑल इंडियंस आर लिखा है ब्रदर्स ब्रदरेन। चलो अगला पॉइंट का व्यवस्था करो। लिखो जीनियस, GENIUS, GENIUS। वीडियो देखो। जीनियस अरबी शब्द जिन से आया है। ये भी उन शब्दों में से है जो बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश तो कर गए हैं, लेकिन ना पूरी तरह से अंग्रेजी हुए हैं और ना ही पूरी तरह से अपना भाषा लागू करते हैं। ये दोनों बात मानते हैं, अंग्रेजी का भी नियम मानते हैं और जहां से बिलोंग करते हैं उसका भी बात मानते हैं। तो कोई भी शब्द जो बाहर से आया वो अंग्रेजी में डायरेक्ट नहीं आया, वो लैटिन के रास्ता से आया, तो लैटिन का प्रभाव पड़ जाता है। तो जीनियस में दो प्रकार से प्लूरल होता है। जीनियस का मतलब समझ लो। जीनियस का मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्राइट, प्योर हिंदी में कुशाग्र बुद्धि। क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। मतलब जीनियस का मतलब, जीनियस का प्लूरल दो प्रकार से बनता है। अंग्रेजी का फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, क्योंकि जिस शब्द के अंत में एस लगा रहे हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगेगा। और दूसरा लैटिन वाला नियम भी लागू होता है, यूएस हटा के आई लगाने वाला, लेकिन दोनों के एरिया बदल जाते हैं। पहले जीनियस का मतलब समझो। जीनियस का मतलब होगा कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के रूप में केवल जीनियस लगेगा। लेकिन जब जीनियस का प्लूरल बनेगा तो दो अलग अलग मीनिंग हो जाए। जीनियस में अगर ईएस लगा के प्लूरल बनाओगे तो उसका मतलब होगा एक से अधिक बुद्धिमान लोग, एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि लोग, एक से अधिक ब्रिलियंट लोग। लेकिन जीनियस में जब यूएस हटा के आई लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जिन, भूत, पिशाच आदि आदि। और कहीं इधर से उधर प्रयोग कर दे ये सोच के भी जीनियस से तो जन्मा है, तो उल्टा का उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा पुल्टा हो जाएगा? समझो, एक ही माता पिता से जन्मा था, रावण भी विभीषण भी, लेकिन कोई समानता था ना? अब बोला हाँ, कोई समानता नहीं था, सब अंतरे थे। ठीक है, तो रावण विभीषण के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों बात तो रावण पहले नहीं ना देख के हो टीवी में जो देखा गया समझ में आ गया। तो समझो क्या बोल रहे हैं। जीनियस से बना जीनियसेस भी और जीनियस से बना जिन्नी भी, लेकिन दोनों में एकदम आसमान जमीन का अंतर। जीनियस में जब ईएस लगेगा तो उसका मतलब होगा कुशाग्र बुद्धि का पूर्व, और जीनियस में यूएस हटा के आई लगेगा तो उसका मतलब हो जाएगा भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि। दोनों एग्जाम्पल बता कर जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले एसएससी का क्वेश्चन सुन, लेकिन फिर से एक बार बोल दे रहे हैं थोड़ा कठिन है। जीनियस का प्लूरल दो प्रकार से बने। एक अंग्रेजी का फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, एस लगा इसलिए ईएस लगेगा, और एक लैटिन वाला फॉर्मूला लगेगा, यूएस हटा के आई लगेगा, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग आया। जीनियस का मतलब तो कुशाग्र बुद्धि होता है, वहां कोई शब्द नहीं है। प्लूरल वाले में दो इलाका हो जाता है। जो जीनियस का प्लूरल ईएस लगा के बनेगा तो उसका मतलब होगा एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि लोग, और जो जीनियस का प्लूरल यूएस हटा के आई लगा के बनेगा तो उसका मतलब हो जाएगा भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि। और दोनों में क्या दिक्कत होगा समझ लो। क्वेश्चन ही बता दे रहे हैं एसएससी का। क्वेश्चन है वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश पर गर्व है, बिकॉज इट हैज प्रोड्यूस, क्योंकि इसने उत्पन्न किया है, मेनी, जिन्नी, लाइक पटेल, नेहरू एंड गांधी जी। सही था? नहीं सर, क्या होना चाहिए? जीनियस, जीनियसेस होना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल शेक्सपियर के कहानी से लिया गया। शेक्सपियर का एक कथा है मैकबेथ। मैकबेथ में दिखलाता है कि जो राजा का सेनापति है वो न केवल राजा का सेनापति है बल्कि राजा का अपना भतीजा है।
युद्ध जीत करके आ रहा है, जंगल से गुजरता है। जब जंगल से गुजरता है तो 3 भूतनियां नजर आती हैं उसको, और तीनों भूतनियां कहती हैं बधाई हो, तुम राजा बनने जा रहे हो। तो चकरा जाता है क्योंकि उसका चाचा जिंदा है जो राजा है, और अगर मरेगा भी उसको 2 बेटा था, उसका नंबर है, ऐसा नंबर ही नहीं है, तो चकरा जाता है। फिर भी अपने आप को संभालता है, घर पहुंचता है, घर में जाके वाइफ को सारा बात बताता है। वाइफ बोलती है हाँ तुम राजा बन सकते हो, गलती भविष्यवाणी नहीं किया हो। बोले कैसे? तो चाचा जिंदा हो बंदे देगा हमको, तो चाचा को मार दो। तो चाचा को मारने के बेटवा बोले बेटवा को मार दो। तो पत्नी उसको खूब बकाई, तो राजा को मार दिया, राजा को मार दिया। बेटा विरोध किया, बेटा को भी मार दिया। बेटा को जब मार दिया तो जनता विद्रोह कर दिया, क्योंकि राजा अच्छा होगा। तो जनता विद्रोह किया तो विद्रोह को दबाने के लगभग 1 लाख आदमी का मर्डर करना पड़ा। 1 लाख मर्डर पूरा होने से पहले दोस्त की वाइफ थी, अपना सुसाइड कर लेती है, बाद में ये भी मारा जाता है। तो हम लोग को एग्जाम में पूछता था कि बतलाइए, प्रूव कीजिए कि इस कहानी में 3 नहीं 4 भूतियां थी। तो इस कहानी में 4 भूतियां थी के लिए क्या होगा? जीनियसेस होगा कि जिन्नी होगा? जिन्नी होगा। एकदम शॉर्ट कट में जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, समझ लो। क्या? एक लाइन में नहीं, एक शब्द में याद करो, पत्नियां ही भूतनियां। दोनों नीचे हो, ऊपर लिखो जीनियसेस, ऊपर वाले में जीनियसेस। ब्रैकेट में 1 से अधिक कुशाग्र बुद्धि, 1 से अधिक कुशाग्र बुद्धि, 1 से अधिक कुशाग्र बुद्धि। क्वेश्चन है, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मेनी जिन्नी का स्पेलिंग बोलो। डबल आई होगा, लिखवाया हुआ है मेरा। मेनी जिन्नी लाइक पटेल नेहरू एंड गांधी जी। है कुछ गड़बड़? यस सर। उधार लिया? यस सर। उधारो जल्दी, चाव नीचे लिखो। GENII लिखा था, नीचे वाले में लिखा है GENII, ब्रैकेट में क्या लिखा? भूतनी, भूत पिशाच, ब्रैकेट बंद कर दो। अब एग्जाम्पल लिखो। हनुमान saves us from जिन्नी। समझ आया? सुने हो? भूत पिशाच निकट नहीं आता। हनुमान जी, तो वही तो बोले हैं हम। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट उसी पर 10 लिखना है, जो भी नंबर है दे दो। 12 नंबर होगा, दे दिया 12 नंबर। लिखो WAGES, उससे भी कटेगा, बढ़िया समझिए। वेजेस का 2 अर्थ है। एक अर्थ है मजदूरी, यानी कि उर्दू में मजदूरी और हिंदी में पारिश्रमिक। दूसरा अर्थ है उसी वेजेस का दंड, यानी कि पनिशमेंट, यानी कि सजा। तुमको हम अभी नाउन नहीं पढ़ा रहे, नाउन में पढ़ा चुके हैं कि नाउन का जन्म पराया सिंगुलर में होता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है। याद आ गया? फिर हमने कुछ नाउन ऐसे दिखलाए जिसका जन्म प्लूरल में हुआ था, हम लोगों ने सिंगुलर बनाया, प्रोफ्यूज। याद आ गया? फिर मालूम हुआ कि कुछ नाउन जो है अपने पहले आए हुए शब्द पर निर्भर करता है कि वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, या तो शीप, डियर, फिश आदि आदि। याद आ गया? यस सर। अब इसके बारे में पेजेस जो है उसका अर्थ क्लियर करेगा, उसका अर्थ निर्णय करेगा कि ये सिंगुलर होने वाला है कि प्लूरल होने वाला है। उसमें कुछ जोड़ना नहीं है। शीप में तुम जोड़े गए थे, डियर में कुछ जोड़े गए थे, उसके पहले आने वाला अर्थ निर्णय किया था कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो पेजेस के पहले आने वाला अर्थ नहीं, पेजेस का अर्थ निर्णय करेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर तुम उसके आधार क्रिया का फैसला कर लेना। तो पेजेस का कितना अर्थ होता है? अर्थ पहले बतला हमको। कौन कौन?
परिश्रमिक यानी मजदूरी, दंड यानी के सजा। अब दोनों का अर्थ ये ढूंढना करेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब वेजेस का अर्थ होगा मजदूरी यानी कि परिश्रमिक, उसे प्लूरल समझा जाएगा, प्लूरल क्रिया दिया जाएगा, उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। अब क्रिया का तुम फैसला करो क्या करो, क्योंकि जैसे ही वेजेस का अर्थ निकलेगा तुम्हारे बात में मजदूरी, उसे प्लूरल समझा जाएगा, प्लूरल क्रिया दिया जाएगा। अब तुमसे भरवा लेते सुनो क्या बोल रहे हैं, द वेजेस खाली जगह वेरी हाई इन पटना। तो यहाँ पर वेजेस का मतलब दंड निकल रहा है कि मजदूरी निकल रहा है? इस भरोगे की बाज की बेयर, इज की बाज, दोनों में से कोई विकल्प सही नहीं। अगला सुनो, यदि उसी वेजेस का मतलब होगा पनिशमेंट, सजा या दंड, तो बिना कुछ जोड़े बिना कुछ घटाए उसे सिंगुलर समझना है और सिंगुलर क्रिया देना है। कैसे? बाइबल का एक लाइन दे रहे हैं तुमको, लाइन है, लाइन तुमसे भरवाएंगे, हालांकि हम जानते हैं लेकिन तुमसे भी सीख लेते हैं। द पेजेस ऑफ सिन, सिन का मतलब पाप, द पेजेस ऑफ सिन खाली जगह डेथ, द पेजेस ऑफ सिन खाली जगह डेथ के साथ क्या भरोगे? इज की आर, पेजेस में कुछ बढ़ाया हो क्या? एस लगाया हो क्या? एस हटाया हो क्या? ना हटाना है ना लगाना है, उसका अर्थ निर्णय करेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जिस प्रकार से सीप डियर के पहले आने वाला अंक निर्णय किया था कि वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, न सीप में तुमने कुछ लगाया था ना कुछ हटाया था, पेजेस में भी ना हटाओगे ना लगाओगे, लेकिन इसके पहले आने वाला अंक नहीं, इसका अर्थ निर्णय करेगा, इसका प्रयोग निर्णय करेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। और दिक्कत दोनों शांति जो ऊपर में लिखो मजदूरी, मजदूरी, ब्रैकेट में लिखो पुलू, पुलू, नीचे जाओ, नीचे लिखो दंड, दंड, ब्रैकेट में लिखो सिंग, सिंग। लो क्वेश्चन आया है, आईबी का नाम सुने हो? यस सर। आईबी का क्वेश्चन है, द वेजेस ऑब्लिक ऑब्लिक ऑफ हार्ड वर्क ऑब्लिक ऑब्लिक आर स्वीट फुल स्टॉप। बताना है गड़बड़ी कहाँ पर है? नहीं है, आर के बदले में ईद होगा यार, नहीं होगा पक्का? हाँ, नो एरर था इसमें। चाहिए नीचे वहां सिंह लिखे थे, एग्जाम्पल द पेजेस ऑफ सिन, सिन आप डेथ लिखवा दें, लिखो इज डेथ। चलो अब अगला पॉइंट की तैयारी करो। अगला पॉइंट जो भी नंबर दो जल्दी से लिखो, इशू, ISSUE। मेरी ओर देखो, कोई भी शब्द अंग्रेजी में ना नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, क्योंकि वह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करके जैसा काम होगा वैसा नाम दे। लेकिन चूंकि अभी हम ऊपर में लिखे गए हैं, कल लिखवा दिया और कुछ सब नाउन, इसका मतलब है हम नाउन को देख रहे हैं। तो इशू जो है क्रिया भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है जारी करना, सुने होंगे और इशू हो रहा है, एडमिट इशू हो रहा है, तो वहां पर क्रिया था। लेकिन हम लोग तो नाउन के रूप में देखेंगे, अभी क्रिया में देखेंगे, लेकिन अभी तो नाउन के रूप में देखेंगे। जब इशू नाउन के रूप में आएगा तो दो मीनिंग निकलेगा। इशू का एक मतलब होगा मुद्दा, क्या होगा? मुद्दा। और इशू का दूसरा मतलब होगा बाल बच्चा। नाउन के रूप में दो अर्थ निकलेगा, पता नहीं बोल में कितना अर्थ निकलने वाला है। इशू जब नाउन का काम करेगा तो कितना अर्थ निकलेगा? दो। एक अर्थ होगा मुद्दा और एक अर्थ होगा बाल बच्चा। अब दोनों में अंतर समझो। जब इशू का मतलब होगा मुद्दा, जब इशू का मतलब होगा मुद्दा, एक रहेगा तो इशू रहेगा और एक सदीक रहेगा तो इशू हो। जैसे अग्निपथ इज एन इशू, इसका है लगा, समझ में आया? क्योंकि एक बात बोल रहे हैं, लेकिन अगला क्या बोल रहा है सुनो। अब बोल रहे हैं अग्निपथ एंड कास्ट सिस्टम।
अग्निपथ एंड कास्ट सिस्टम। एक हुआ कि दो? आर लगाए कि इस लगाए? इशू लगाए कि इशूज लगाए? इसका मतलब है कि जब इशू का मतलब होगा मुद्दा, वो सिंगुलर भी रह सकेगा, प्लूरल भी हो सकेगा, जैसा होगा वैसा व्यवहार करना। क्यों के अब पलटी मारना। उसी इशू का मतलब होता है बाल बच्चा। सेम नाउन ही, लेकिन मतलब निकलता है बाल बच्चा। और इस बार गजब हो जाएगा जब इशू का मतलब होगा बाल बच्चा और वाजपेयी की तरह एक को बच्चा नहीं रहेगा तब भी इशू लगेगा। वाजपेयी है नो इशू। और राजनाथ सिंह की तरह एक बच्चा रहेगा तब भी रहेगा राजनाथ सिंह हैज एंड इशू। और लालू की तरह 9 बच्चा रहेगा तैयो इशू रहेगा। लालू हैज 9 इशू। मतलब छटपटा के इशूज मत कर देना कि हम मुद्दा में किए थे तो यहाँ भी कर देंगे, जब यहाँ भी करना होता वहां भी करना होता। तो पढ़ाते काइट कहे ना पढ़ा रहे, डॉग कहे ना पढ़ा रहे, वही पढ़ा रहे जहाँ तो फंस सकते हो। मुझे अब नहीं फंसोगे, और अगर फंसोगे तो दोबारा बता देना बढ़िया सब। जब इशू का मतलब होगा मुद्दा, एक रहेगा सिंगुलर, एक से अधिक रहेगा प्लूरल। जैसा होगा वैसे क्रिया के साथ स्वागत करना, कोई दिक्कत। लेकिन जब इशू का मतलब होगा बाल बच्चा, नहीं रहेगा तो भी इशू, एक रहेगा तो भी इशू, और 9 रहेगा तो भी इशू। कोई दिक्कत? दोनों साथ खींचो। ऊपर में लिखो बाल बच्चा, ऊपर में बाल बच्चा, ब्रैकेट में सिंग, सिंग ब्रैकेट बंद। एग्जाम्पल लालू हैज 9 इशूज लिखवा दें। क्या लिखोगे? इशू। जाओ नीचे लिखो मुद्दा, मुद्दा ब्रैकेट में लिखो सिंग ऑब्लिक फुल, सिंग ऑब्लिक फुल। लिख दिया? दोनों का एक दिमाग को लिखवा दे रहे हैं। लिखो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट, ग्रेट इशूज करवा दे? नहीं, यस सर। एक है इज ए ग्रेट इशू कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन, एंड करप्शन इज लिखवा दें आर ग्रेट, आर ग्रेट इशू, इशू लिखवा दें इशूज। अगला पॉइंट का नंबर है, नाम लिखो फोर्स, FORCE, FORCE लिख दिया? मेरी ओर देखो। फोर्स जब क्रिया का काम करेगा तो उसका मतलब होगा बल लगाना, जबरदस्ती करना। जैसे लड़के को फोर्स मत करो, तो यहाँ पर हुआ बल लगाना, जबरदस्ती करना। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है नाउन। जब फोर्स नाउन के रूप में काम करेगा तब उसका 2 अर्थ निकले। फोर्स का एक अर्थ होगा शक्ति, जो कभी दिखाई नहीं देगा, छुआ नहीं जा सकेगा, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो सिंगुलर होगा। लेकिन वही फोर्स नाउन के रूप में ही दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है सेना। क्या होता है? सेना। और सेना काउंटेबल है, और जो काउंटेबल है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे BSF एक सेना है, लेकिन BSF और आर्टिलरी फोर्सेस हो जाए। क्वेश्चन सुन लो, समझ में आ जाए कि मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल, ठीक है, खाली जगह तुमसे भरवाएंगे। देयर फाइटिंग विथ द फोर्स ऑफ इराक। जब इराक सेना ने कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका ने सब लोगों को, सब सेना वाले को, सब देश को एक किया कि ये अन्याय करना चाहिए, इराक के खिलाफ लड़े। तो सारे देश के सेना ने साथ दिया। इंडिया का भी सेना था, पाकिस्तान का भी था, मतलब सारे देश का सेना था सिवाय इराक। तो उससे बोला गया मल्टीनेशनल, मतलब बहुदेशीय, सब देश का था।
तो सब देश का एक सेना होगा कि अनेकों सेना होगा? एक। तो वहां पर फोर्सेज होगा कि फोर्स होगा? और आगे सुनो क्या बोल रहे हैं, समझना पड़ेगा से। इंडियन खाली जगह वाज ऑल्सो फाइटिंग विथ मल्टीनेशनल फोर्सेज। अब यहाँ पर क्या होगा, इंडियन फोर्स की फोर्सेज और वहां बोले थे मल्टीनेशनल फोर्सेज, तो यहाँ गलत कि वहां गलत? दोनों जगह सही। फोर्स का मतलब जब सेना होगा वो कॉन्टिन्यूल होगा, एक सेना होगा फोर्स होगा, एक से अधिक होगा फोर्सेज होगा। लेकिन फोर्स का मतलब जब शक्ति हो जाएगा तो एक से अधिक हो ही नहीं सकेगा, जितना भी हो जाए अनकाउंटेबल होगा और अनकाउंटेबल होगा सिंगुलर होगा। ऐसा नहीं कि उल्टा कर दो, शक्ति के रूप में एस लगा दो, सेना के रूप में एस घटा दो। याद रहे, सेना के रूप में बिना एस के भी आ सकता है, कब एक सेना का बात होगा, और जब एक से अधिक होगा तो फोर्स का मतलब ये है कि जब सेना के रूप में होगा तो फोर्स भी हो सकता है, फोर्सेज भी हो सकता है, और शक्ति के रूप में होगा तो फोर्स भी हो सकेगा, फोर्सेज भी हो सकेगा, है ना? गलती हो गई यहाँ नहीं। जब फोर्स का मतलब होगा शक्ति केवल सिंगुलर रहेगा, और जब सेना होगा तो केवल प्लूरल रहेगा, है ना? लिखो, ऊपर लिखा यस क्या लिखा, फोर्स लिखा है, यस सर। ऊपर भी लिखोगे दो साथ खींचे होगा, ऊपर लिखो शक्ति, शक्ति ब्रैकेट में लिखो सिंग, सिंग एग्जाम्पल लिखो, फोर्स इज बीइंग, force is being used, force is being used, full stop, जहाँ नीचे लिखो सेना, सेना के बाद ब्रैकेट खोलो, लिखो सिंग ऑब्लिक ब्लू, सिंग ऑब्लिक ब्लू। एग्जाम्पल लिखो, द फोर्स इज अलर्ट, the force is alert। अगला मल्टीनेशनल फोर्सेज, मल्टीनेशनल फोर्सेज आर रेडी टू सपोर्ट यूक्रेन, टू सपोर्ट यूक्रेन। फोर्सेस क्या है वो समझ में आ गया? यस सर। तो अगला पॉइंट चलो, इसी प्रकार से लिखना है, 15 नंबर है ना? यस सर। हिंदी में लिखना है इस बार, हिंदी लिखो, अविवाहित, अविवाहित शब्द किसी भी एक हिंदी शब्द का कम से कम 100 अंग्रेजी होता है। जो तुमको तुम कर सकता है वो पढ़ाया जा रहा है, सब पढ़ने के लिए जन्म कब पड़ जाएगा, तो सब नहीं पढ़ना है, हमको सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं हो कि सब कुछ जान जाए नाउन के बारे में, बाकी सब छूट जाए, नहीं, सब कुछ जानना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अविवाहित का एक अंग्रेजी है अनमैरिड, कोई दिक्कत नहीं है, जहां चाहो लगा दो, लड़का में भी सही लड़की में भी सही। अविवाहित का अंग्रेजी है सिंगल, जहां चाहो लगा दो, लड़का में भी सही लड़की में भी सही। लेकिन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें दिक्कत है, इसलिए बढ़िया समझ। अनमैरिड यानी अविवाहित का एक अंग्रेजी है बैचलर और एक अंग्रेजी है मेड। यहाँ सीमा है, सीमा क्या है? मेड का मतलब अविवाहित तो होगा लेकिन केवल स्त्री के लिए प्रयुक्त हो, और बैचलर का मतलब अविवाहित तो होगा लेकिन केवल पुरुष के लिए प्रयोग हो। कहीं इधर से उधर किए तो अनर्थ हो जाएगा, जानबूझ के अनर्थ कर रहे। सुनो क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मायावती इज ए बैचलर, कुछ अनर्थ हुआ? यस सर। और अब बोल रहे हैं कि वाजपेयी वाज ए मेड, कुछ अनर्थ हुआ? यस सर। अगर सिंगल बोले होते दोनों जगह लग जाता, अनमैरिड बोले होते दोनों जगह लग जाता, लेकिन बैचलर और मेड इधर से उधर हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। कहाँ से आएगा? क्लॉज टेस्ट में। क्लॉज टेस्ट में फिल अप द ब्लैंक का 5 क्वेश्चन रहता है, पांचों में 5-5 विकल्प रहता है। अब पांचों में लगता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन होगा कोई एक, इसलिए उसका एक्यूरेट मीनिंग जानना पड़ता है। उसी का धीरे धीरे तैयारी करवा रहा है, नोट कीजिए। अविवाहित लिखा था, ऊपर में 2 निशान दिया है, तो ऊपर वाले का लिखेंगे पुरुष, नीचे में लिखो स्त्री, पुरुष स्त्री। पुरुष के बगल में लिखो बैचलर,
BACHELOR बैचलर, और नीचे लिखो मेड MAID। ऊपर में एग्जाम्पल है, वाजपेयी इज ए बैचलर, इज मतलब वाज कर देना तो अनर्थ हो जाए। वाजपेयी वाज ए बैचलर, वाज ए बैचलर। और नीचे एग्जाम्पल लिख लो, मायावती इज ए मेड, मायावती इज ए मेड। चलो अगला पॉइंट का नंबर 2, नाम लिखो घर, धारा घर हिंदी में लिखना है, 2 निशान खींचो, ऊपर में लिखो हाउस और नीचे में लिखो होम, हाउस होम। मेरी ओर देखो, हर भी एक हिंदी शब्द है, इसका भी 100 अंग्रेजी हो सकता है, लेकिन जो तुमको दिक्कत दे सकता है उसको डील कर रहा है। दिक्कत देगा तुमको हाउस और होम, इसके बारे में कवि ने बड़ा शानदार बात कहा है, अपने आप समझ में आ जाए। कवि क्या कहता है समझो, कवि कहता है कि हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, बट होम इज मेड ऑफ लव, होम इज मेड ऑफ लव। मतलब कहने का कि जो हमारे लिए ईंट पत्थर का भंडार है वो हाउस है, और जिसका रिश्ता, जिसका संबंध प्रेम से है, हृदय से है, वो होम है। मतलब तुम अभी बाहर से आके पटना में रहते हो, हम भी तुम्हारे पास देहाती आदमी झोला लेके पटना आए थे पढ़ने के लिए, नौकरी हो गया पटना में, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी हम लोग पटना में आते हैं तो किराए के मकान में रहते हैं, तो हो सकता है कभी ऐसा हो कि जिस मकान में किराए में रह रहे हो वो हमारे मकान से अच्छा हो सकता है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उस मकान को ताकने में नहीं आएंगे। हमारा रिश्ता उसी मकान से बना रहेगा जिससे हम बिलोंग करते हैं, चाहे वो जितना भी घटिया क्यों नहीं, जितना भी गिरा पड़ा क्यों नहीं हो, उससे हमारा संबंध बना रहेगा। और ये तो हमारे लिए खुला करकट के समान हो जाएगा जब नौकरी मिल जाएगा तो, ठीक है। लेकिन जो अपना घर चाहे जैसा भी हो वो हमारे दिल से जुड़ा ही रहे। कैसे जुड़ा रहेगा, एग्जाम्पल बता दे रहे। नाम सुने होंगे परवेज मुशर्रफ, उनको भारत से आमंत्रण मिला कि भारत आइए, तो उनको दिल्ली ले जा रहा गया था राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन जाने के लिए दिल्ली में जगह चांदनी चौक से गुजरना पड़ता है, लाल किला से पहले पड़ता है चांदनी चौक, चांदनी चौक से गुजरना पड़ रहा था। तो जब किसी देश का राष्ट्रपति आता है तो उसके आगे भी गाड़ी रहती है भारत सरकार के, पीछे भी गाड़ी रहती है भारत सरकार के प्रोटोकॉल, अब बीच में राष्ट्रपति का गाड़ी रहता है। तो उन्होंने कहा रोको रोको रोको, पब्लिक घबरा गया, सरकार घबरा गया, ये क्या हो गया, रोकने के लिए बोलो चलो गाड़ी है कहीं नहीं तो कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, बोले रुको, गाड़ी रुका। तो उसके बाद चांदनी चौक में एक रास्ता आता है जिसका नाम है बल्ली बारान, जो चांदनी चौक और फतेहपुर मस्जिद के बीच में पड़ता है, वहां पर गाड़ी रुकवाया। और गाड़ी रुकवाने के बाद पाकिस्तान का राष्ट्रपति पैदल चल पड़ा पहली ओर, और पैदल कितना दूर चला समझ लो, यहाँ से गांधी में इतना दूर राष्ट्रपति चला, कहाँ का, पाकिस्तान का, सब सेना को छोड़ के, अपने सारा बॉडीगार्ड छोड़ के चला। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भी भारत सरकार का भी सेना विभाग के पीछे पीछे पैदल चल पड़ा। चलते चलते जब गाड़ी में दूर पहुंचा तो वह टूटा फूटा मकान में ऊंचा जगह मट्टी गिर के ऊंचा होगा उस पर जाकर बैठ गया, और राष्ट्रपति पाकिस्तान जाकर बैठ गया। पूरा भौचक्का, पूरा प्रेस भौचक्का, पूरा देश भौचक्का, ऐसा कैसे हो। कुछ देर के बाद दुकान बना हुआ, पूछा कैसे ऐसा क्यों कर रहा है, बोले कोई खास बात नहीं है यार, यहीं हम जन्मे थे। समझना है कुछ, शत्रु देश में राष्ट्रपति जमीन पे बैठा हुआ है, क्यों, घर का मुंह है, अपने घर का मुंह है, कुछ भी हो जाए वो बना रहेगा। अडवाणी भी जब जाते हैं पाकिस्तान वो अपने घर जरूर जाते हैं, उनके घर पाकिस्तान में पड़ता है, क्यों, शत्रु देश में हम अपना घर खोज रहे हैं, दिल का मामला है, तो उसके लिए क्या होगा, होम हो। लेकिन जो पराया है, आज तक कल छोड़ना है, ईटा पत्थर के भंडार के समान है, उसके लिए हाउस होगा। लॉजिक देखोगे, लॉजिक देख लो, पार्लियामेंट को हाउस कहा जाता है, मालूम है क्यों, सबको मालूम है, एक दिन छोड़े पड़े नहीं तो हाउस बोलता है। और जब तुम गिरा प्रवेश करते हो तो कार्ड में तुम्हारा लिखा रहता है कि हो, हाउस नहीं लिखा रहता, क्या है, दूसरे के घर में प्रवेश करोगे,
समझ में आया लॉजिक? और लॉजिक अंग्रेजी में लॉजिक है, कुछ नहीं थे तभी नहीं चलता। हम जानते हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे बाबूजी बोलते नहीं चलता अंग्रेजी में सिद्ध करना पड़ता, लोग सिद्ध कर दे रहे। अगर हमको बोलना रहे कि मैं घर जा रहा हूं तो हमको बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग टू हाउस, लेकिन आई एम गोइंग होम ये अन्याय। हाउस में टू लग रहा, होम में नहीं लग रहा है, लॉजिक है। अपनों को मिलाने के लिए कोई एजेंट, कोई दलाल, कोई अगुआ, कोई शादी करवाने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना नमूना के रूप में। तुमको कोई बाबा जी, कोई मौलवी साहब, कोई पादरी आके कभी बोला है कि बेटा देखो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, कोई बोलता है? नहीं, ताकत किसका है जो बोलता है? हमारी माँ को दूसरा कोई रूप कर रहा है, हमारी बहन दूसरा को बता रही है मेरी माँ है, मेरी बहन है, कोई नहीं बोले। लेकिन जैसे ही सर्विस होगा, कोई बाबा जी, कोई मौलवी साहब पहुंचेंगे अब बोलेंगे कि देखो बाबू यही लड़की है, तुम्हारा किस्मत खराब करेगा। तब तुम देख रहे हो कि अपनी माँ बहनों को परिचय नहीं करवाया, दूसरे को परिचय करवाया। तो दूसरे के लिए चाहिए अगुआ, दूसरे के लिए चाहिए दलाल, दूसरे के लिए चाहिए एजेंट, दूसरे के लिए चाहिए बाबा जी, अपने माँ बहन के लिए चाहिए नहीं। तो हाउस पराया है, इसलिए टू नामक एजेंट चाहिए, टू नामक बाबा जी चाहिए जोड़ने के लिए। और होम अपना है, कोई बाबा जी नहीं, अपने आप मेरी माँ बहन हमसे जुड़ी रहे, किसी जोड़ने वाला फायदा कौन होगा? समझ में आया? तो हाउस का मतलब पराया घर, होम का मतलब अपना घर। इसको लिखवा दे पहले, हाउस को लिखो पराया घर। पराया घर जैसे जैसे आई लिव इन ए रेंट हाउस, आई लिव इन ए रेंट हाउस। जाओ नीचे लिखो अपना घर, अपना घर। एग्जाम्पल लिखो, आई सेलिब्रेट छठ, आई सेलिब्रेट छठ इन माई होम, फुल स्टॉप। होम क्यों हुआ समझ में आ गया होगा? अगला पॉइंट का व्यवस्था कीजिए और लिखिए लाइट, LIGHT लिख लिया? चलो रेडी हो गए। लाइट जब एडजेक्टिव का विशेषण का काम करेगा तो उसका मतलब होगा हल्का, इसे लाइट में। क्लियर? जब लाइट क्रिया का काम करेगा तो उसका मतलब होगा सुलगाना, जैसे लाइट द कैंडल। लेकिन हम लोग देख रहे हैं लाइट को नाउन के रूप में। जब लाइट नाउन का काम करेगा तब उसका दो अर्थ निकलेगा। लाइट का एक अर्थ है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। समझना बढ़िया से। देखो कहा था ना अंग्रेजी में 100% कुछ नहीं हो सकता, समझो बढ़िया से। हमने कहा था कि वह नाउन जिसे देखा नहीं जा सके, छुआ नहीं जा सके, गिना नहीं जा सके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। सदैव की पराया। क्योंकि दुनिया में एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे देखा जा सकता है फिर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान है जिसे देखा नहीं जा सके, छुआ नहीं जा सके। लेकिन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, देखा जा सकता है और फिर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम है लाइट। देखा जा सकता है ना, छुआ नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। तो फॉर्मूले मार खा गया, जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके। इसलिए जो आदमी चलाक रहेगा वो यही लिखेगा पराया, ताकि फिर पैकराबाजी कर ही ना सको। तो लाइट एक लौटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे देखा जा सकता है, लेकिन है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो बॉन्ड टू बी सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर बना रहेगा। लेकिन हमेशा नहीं, जब लाइट का मतलब प्रकाश निकलेगा तब ये सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर क्रिया लेगा। क्लियर? क्योंकि जब लाइट नाउन का काम करता है तो इसका एक और अर्थ निकलता है जो तुम हिंदी गलती जानते हो। लाइट का तो मतलब बोलते हो बत्ती, बत्ती जला दे सर, बत्ती बुता दे सर, आदि आदि। लाइट का मतलब बत्ती नहीं होता। लाइट का शुद्ध हिंदी होता है प्रकाश स्रोत। क्या होता है? क्यों हम प्रकाश स्रोत बोले? सब बत्ती बोलता है, बत्ती क्यों नहीं बोले? ग्रामेटिकली बत्ती गलत है, बत्ती का मतलब समझ लो। बत्ती जो है बाती का बिगड़ा हुआ रूप है, और बाती का मतलब होता है कपड़े का या धागे का या रुई का बना हुआ छोटा सा टुकड़ा। सुने होंगे दिया बाती, सुना है कभी? तो पहले तो हम लोग जब
बचपन में हम लोग खुद रुई का बनाते थे दिया में जलाने के लिए दिवाली, लेकिन अब रेडीमेड मिलने लगा है, 25 पीस 50 पीस मिलता है। तो वही है रियल में बत्ती, वही है बाती। कहाँ जल रहा है? तो बोले बत्ती बुझा दे सर, बत्ती जला दे सर। कहाँ है बत्ती? तो पब्लिक बोलता है, पब्लिक में यही ना अंतर है, ग्रामर में यही अंतर है। पब्लिक क्या बोल रहा मतलब नहीं है, बत्ती है इसमें। कभी बत्ती कहा बोलते, बत्ती जला दे सर, बत्ती बुझा दे सर। बत्ती था कब तक? जब तक दिया था, ढिबरी था, लालटेन था, तब तक बत्ती था। अब कहाँ है? लेकिन पब्लिक उसी पर लटकल है। हम बोलते हैं तो जिम्मेदारी है, क्या बोलते क्या मतलब? बोला करो, ग्रामर में मत हस्तक्षेप करवाए। तो जब लाइट का मतलब होगा बत्ती, तो गलत निकलेगा, बत्ती हो ही नहीं सकता। बत्ती का और अर्थ बदलाते हैं। जब मेडिकल साइंस पूरा तरक्की नहीं किया था और किसी को गहरा जख्म होता था तो रुई का लंबा बना के उसमें मलहम लगा के जख्म में प्रवेश करवाया जाता था और उसको बोला जाता था बत्ती पड़ना। वो है इसमें, ट्यूबलाइट में है क्या? तो कहे बोलता है बत्ती जला दे सर, बत्ती बुझा दे सर। अब इसको बोलो प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत बोलोगे तो दिया भी आ जाएगा, डिबरी भी आ जाएगा, लालटेन भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो लाइट का मतलब बत्ती बोलना हिंदी ग्रामेटिकली गलत। तो लाइट का मतलब बोलेंगे प्रकाश स्रोत, मतलब लाइट का दो अर्थ निकला। लाइट का एक अर्थ है प्रकाश और एक अर्थ है प्रकाश स्रोत। जब लाइट का मतलब होगा प्रकाश, ये गिनती नहीं हो सकेगा, हवा के दिखेगा लेकिन गिनती नहीं हो सकेगा। और जो गिनती नहीं हो सकेगा वो अनकाउंटेबल होगा, जो अनकाउंटेबल होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही लाइट का मतलब होगा प्रकाश स्रोत, वो गिनती हो सकेगा, और जो गिनती हो सकेगा वो सिंगुलर भी हो सकेगा, सिंगल भी हो सकेगा। जब सिंगुलर होगा सिंगुलर क्रिया देना, प्लुरल होगा प्लुरल क्रिया देना। जैसे योर रूम हैज ओनली वन लाइट, ओनली वन लाइट, बट योर क्लास रूम हैज 6 लाइट्स। समझ में आया? और जो लाइट का मतलब होगा प्रकाश, तो एक खिड़की खोलोगे तब भी प्रकाश आएगा और 3 खिड़की खोलोगे तो प्रकाश हो, है ना? तो प्रकाश तो लाइट रहेगा। नोट कर, जो निशान खोले हैं ना, ऊपर में लिखो प्रकाश, प्रकाश, ब्रैकेट में लिखो सिंह, सिंह। एग्जाम्पल है लेट द लाइट, लेट द लाइट कम इन योर लाइफ, कम इन योर लाइफ। फुल स्टॉप। जाओ नीचे, नीचे में लिखना है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ब्रैकेट में लिखोगे सिंह ऑब्लिक ब्लू, सिंह ऑब्लिक ब्लू। जैसे जैसे वन लाइट इज ऑफ, ऑफ ओ डबल एफ। 7 lights are on ON। फुल स्टॉप। अगले पॉइंट के लिए जगह नहीं छोड़ना है, अब केवल बाएं साइड में नंबर लिख लीजिए। और अब तक का सबसे कठिन है, बढ़िया समझिए। नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को दर्शाने वाले को कहा जाता है एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव के पहले दा लगे और एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं हो तो वह उस प्रकार के सारे जाति भर का बोध करवाएगा। पढ़ा चुके हैं दास, याद आ गया? लेकिन दा के बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन हो तो वह केवल उस नाउन का बात करे। जैसे द ब्लाइंड का मतलब है दुनिया का सारा अंधा, लेकिन द ब्लाइंड मैन का मतलब है एक अंधा व्यक्ति, और द ब्लाइंड मैन का मतलब है सब नहीं, कुछ अंधे व्यक्ति। इसका मतलब है कि द के बाद जब एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जब पूरे जाति भर का बोध करवाएंगे नाउन नहीं लाएंगे, और कुछ का या एक का बोध करवाएंगे मतलब समस्त का बोध नहीं करवाएंगे तो नाउन लाएंगे। अंतिम एग्जाम्पल बता रहे हैं, द ब्लैक टीचर। तो यहाँ पर केवल मेरा बात किए तो तुमको टीचर लगाना पड़ा।
द ब्लैक स्टूडेंट, सबका बात नहीं की है, कुछ काले विद्यार्थियों का बात की है, द ब्लैक पे लगाना पड़ा। लेकिन हम चाहें तो नाउन गायब कर दें, लेकिन मेरे मर्जी से नहीं, तब गायब करेंगे जो पूरे काले लोगों का वोट करवाना हो, जिसमें हम भी शामिल होंगे, मेरे विद्यार्थी भी शामिल होंगे, महात्मा गांधी भी शामिल होगा, नेल्सन मंडेला भी शामिल होगा, तो वहां पर नाउन नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि जब बा के बाद एडजेक्टिव आए तो नाउन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, आवश्यकता अनुसार। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये जब ए एन आए और ए एन के बाद एडजेक्टिव आए तो नाउन अवश्य रहेगा, नाउन हट ही नहीं सकता। यानी ए एन के बाद एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आएगा। ए गुड कभी नहीं होगा, ए बैड कभी नहीं होगा, ए गुड बॉय हो, ए बैड एलिमेंट हो, क्योंकि आर्टिकल यानी ए एन कविता के बारे में फिर सुन, दा आए उसके बाद एडजेक्टिव आए तो नाउन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन ए एन आए और एडजेक्टिव आए तो नाउन रहेगा ही, वरना आर्टिकल नहीं आएगा। नमूना गुरुत्व, तो राम इज ए गुड बॉय में ए इसलिए आया है कि गुड के बाद बॉय है, बॉय हटा के ए लगा के देखो, तो राम इज ए गुड होगा क्या? नहीं हो सकेगा। राम इज ए बैड हो सकेगा क्या? नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है किसी एडजेक्टिव को अपने पहले ए एन लेने के लिए उसके बाद नाउन का होना नितांत आवश्यक है। क्लियर? दाखिला नहीं बोल रहे ए एन के बारे में, ए एन ही मुद्दा है अभी तक। किसी भी नाउन को अपने पहले ए एन लेने के लिए, गलती बोल दिया, किसी भी एडजेक्टिव को अपने पहले ए एन लेने के लिए उस एडजेक्टिव को नाउन के पहले होना जरूरी है, मतलब उसके बाद नाउन होना जरूरी है, वरना ए एन नहीं है। क्लियर? सदैव की पराया एक शब्द तो खटिया खड़ा कर देगा, केवल एक शब्द, केवल एक। बढ़िया समझ क्या है कि फिर से बोल रहा है, बैकग्राउंड ले आ रहा है पास, क्योंकि बहुत भारी है, भारी कितना हो कल्पना कर। कोई भी एडजेक्टिव तब तक ए एन आर्टिकल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल में दा भी आता है। कोई भी एडजेक्टिव अपने पहले ए एन तभी लेगा जब उसके बाद कोई नाउन आए। एडजेक्टिव बिना नाउन के आर्टिकल नहीं ले सकता, सॉरी ए एन नहीं ले सकता। क्लियर? तो किसी भी एडजेक्टिव को अपने पहले ए एन लेने के लिए क्या चाहिए? क्लियर? लेकिन अंग्रेजी में कुछ हो सकता है। एक शब्द है फूल, एफ डबल ओ एल। फूल के साथ दिक्कत है कि नाउन के साथ ये एडजस्ट नहीं करता, बोलता वो नाउन से एलर्जी। ठीक है भैया, एलर्जी है तो आर्टिकल भी मत लो, जो नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। भूल कहता है नहीं, हम बिना नाउन के आएंगे पहला कंडीशन और ए एन भी लेंगे दूसरा कंडीशन। देखो जबरदस्ती, बोले नाउन साथ नहीं आएंगे और आर्टिकल भी लेंगे। लेकिन नाउन साथ नहीं आओगे आर्टिकल कैसे मिलेगा? बोले लेंगे डाल, लेकिन कारण होगा, पहले और को भी ला दे ताकि सबके सब मिला। फूल का मतलब होता मूर्ख। अगले का नाम है कवाड़, सी चाची हमको देखो संस्कारी आदमी है, सारी औरतों को चाची मौसी समझता है, उससे कम में बातें नहीं करता, सब सीनियर, खाली हम ही जूनियर। समझो समझना, हम भी भटक गए थे। अगले का नाम है कवाड़, COWARD। क्या नाम है? कवाड़ का मतलब होता है कायर, ये भी एडजेक्टिव है। इसको भी अपने पहले ए एन लेने के लिए बाद में नाउन लेना चाहिए। धांधली ये कि बोलता नाउन नहीं लेंगे अपने बाद और आर्टिकल भी लेंगे, ए एन भी लेंगे, बदमाशी। एक और शब्द है, बस तीन है, बढ़िया के तीन है, तीसरा तरह मुखा ला देता। अगले का नाम है माइजर, MISER, जिसका मतलब होता है कंजूस। बोलता है अपने बाद नाउन नहीं लेंगे और आर्टिकल ए एन लेंगे। बस यही तीन शब्द है जिसको ताकत है कि बिना नाउन के आए, बिना नाउन के संगति के ए एन ले। तो है तो कारण होगा, कारण क्या है? पर फिर से बता दो कि किसी भी एडजेक्टिव को अपने पहले ए एन लेने के लिए एडजेक्टिव के अतिरिक्त और क्या चाहिए? नाउन। और अगर एडजेक्टिव के संग नाउन नहीं है तो नो आर्टिकल, यानी ए एन नहीं कम से कम। लेकिन तीन शब्द है तो बोलेगा अपवाद नहीं, अपवाद नहीं, कारण। कारण फिर समझो,
किसी भी एडजेक्टिव को अपने पहले ए एन लेने के लिए अपने बाद क्या चाहिए? नाउन नहीं तो एडजेक्टिव करता है नहीं। अब सवाल है कि फूल में ऐसा क्या हो रहा है, समझो। फूल का मतलब होता है मूर्ख, इसके बाद नाउन लगाना ही मूर्खता, नाउन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि नाउन इसके अंदर मौजूद है। तो कैसे? फूल का मतलब मूर्ख, तो मूर्ख कोची माइक, मूर्ख मोबाइल, मूर्ख दीवार, मूर्ख कुतुब मीनार नहीं, मूर्ख इंसान। तो इंसान बोलने का जरूरत है, मूर्ख का मतलब ये होता है मूर्ख इंसान। तो इंसान लगाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर मौजूद है। और फिर आर्टिकल तुम काहे ना लगाओ, तो ये मतलब तुमको आर्टिकल के लिए क्या चाहिए था? एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन तो है ये है, दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता है, इसको एग्जाम्पल समझ लो। जब धोनी इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आया था तब एक विकेट कीपर अलग से खेलता था, चंद्रकांत, पंडित, मोरे, सभा, करीम आदि आदि। लेकिन जब वो आया तो विकेट कीपर का सीट ही खत्म कर दिया, क्योंकि विकेट कीपिंग भी कर लेता है, बढ़िया बैटिंग भी कर लेता है। तो बोलेगा कि हम 2 in 1 हैं, तो बोलेगा क्या आदमी दिखाई देता है? बोले फील्ड में उतारो, समझा देंगे कि हम विकेट कीपर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। तो अब तुम गौर से देखो, क्रिकेट को जब देखे होंगे तो तुमको महसूस हुआ होगा कि क्रिकेट में बैट्समैन का गलव और पैड अलग होता है और विकेट कीपर का गलव और पैड अलग होता है। तो जो बैटिंग करता है उसको केवल बैटिंग वाला गलव और पैड मिलेगा, और जो विकेट कीपिंग करेगा उसको विकेट कीपिंग का गलव और पैड मिलेगा। लेकिन धोनी को तो अब तुम आपत्ति करोगे एक आदमी दुद्दू को काहे देगा? बोलेगे एक आदमी है लेकिन 2 आदमी मेरे अंदर मौजूद नहीं है, मौजूद। बोले कहा? बोले विकेट कीपिंग करवाओगे तो हमें विकेट कीपर नजर आएगा, बैटिंग करवाओगे हमें बैटिंग नजर आएगा। तो दोनों चीज लेगा कि नहीं? और अब दूसरा बात, लॉजिक देखो, तुम खुद लॉजिक दोगे। अब मतलब धोनी को रहते हुए इंडियन क्रिकेट टीम में एक विकेट कीपर को अलग से खिलाना ठीक रहेगा? उसके बदले में बॉलर को खिला लेंगे, क्यों खर्चा बढ़ाएंगे? तो एक बैट्समैन का पैसा बचा रहे हैं, भास्कर को खेल ही सकता है और चंद्रकांत पंडित को भी खेल सकता है। अब उसके रहते हुए अलग से विकेट कीपर खिलवाना बेवकूफी है। और फिर 2 सुविधा क्यों नहीं दोगे? ये मतलब डबल सुविधा क्यों नहीं दोगे? लेगा डबल सुविधा। बोले आदमी तो एक है, आदमी एक है लेकिन क्वालिटी उसमें 2 है। तो फूल एक है लेकिन क्वालिटी 2 है, उसमें नाउन पहले से मौजूद है। अब मतलब नाउन को खिलाना जरूरी है उसके साथ। और अब मतलब आर्टिकल चाहे ना दोगे, देना ही पड़ेगा। दूसरा देखो, अब तुम नहीं से बोल रहे तो सर मूर्ख इंसान होता है क्या, और कोई मूर्ख नहीं हो सकता? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होता है। क्योंकि कभी सुने हो गधा को, कुत्ता को अपने माँ बाप का मर्डर करना? कभी नहीं। कुत्ता अपने भाई का कभी मर्डर नहीं करेगा, लेकिन इंसान को देखो परसों माँ का मर्डर कर दिया है पबजी के चक्कर में। क्या इंसान किया? ऐसा इंसान ही कर सकता है। कभी सुना हो ऐसा? किसी भी जगह कुत्ता में, भेड़ में, किसी में भी क्या अपना डिमांड मांगेगा तो गोली चलाया जाएगा, बोले कैद कर लो। अपना बात मांगता कि भैया हमारा रोजगार 4 साल है, 40 साल कर दीजिए, हमारा पेंशन दीजिए, बोले तो पेंशन मांगेगा, चल जेल, खाओ लाठी। ये होता है जानवर में, बकरी में होता है, गधा में होता है, कुत्ता में होता है? नहीं, ये दोनों इंसान है। जब हम अपना बात मांगे तो बोलो हम पैसा नहीं थोड़ा पढ़ा, तो पढ़ेगा तो हिम्मत कैसे होगा? बोले बाहर निकल और वो करे। ऐसा करता है जानवर? ऐसा केवल इंसान करेगा। हम अपना डिमांड मांग रहे हैं कि भैया हमको ही पेंशन दीजिए, आप 4 साल के लिए मंत्री बनते हैं, पेंशन ले लेते हैं, हमको थोड़ा पेंशन दीजिए ना। पेंशन मांगे तो हिम्मत कैसे हो गया? बेतरबादी तुझे जो ही अंदर ऐसा कहाँ होता है? जानवर में होता है क्या? तो अब बताओ हमसे बड़ा तो मूर्ख हो सकता है? अब तो अपना मूर्ख देख लो, तू पैसा देता है, यहाँ पैसा देकर बैठा जाओ गप करना, क्योंकि बाहर में हम लोग से बोलेगा रुको 2 मिनट गप करना, नहीं हमें समय नहीं। और यहाँ थोड़ा सा बड़ा मूर्ख कौन है? पैसों दे रहा है, गप्पो करना, अपना समय पैसा देकर व्यक्त कर रहा है। अब अपना से बेसी का मूर्ख हो सकता है क्या? तो तुम गधा को मूर्ख बोलता है, मुक्त तू है। गधा से बड़का मूर्ख, गधा पैसा देकर कभी गप न करता, कम बोलता है। अब तुम पैसा दे देगा गप करना, पैसा दिए गप करना, थोड़ा सा बड़का मूर्ख हो सकता है। और हमसे बड़ा मूर्ख देखो, लड़का को डांटते हैं, ताकि तुमको ग्राहक है तो फसावत करना चाहिए कि नहीं आगे भी ग्राहक लाएगा, लेकिन डांटते हैं तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख मिलेगा जो अपने ग्राहक को डांटे? थोड़ा सा बड़ा कोई मूर्ख मिलेगा पैसा देके गप पर? तो सोचो हम लोग से बड़ा कोई मूर्ख है? और महामूर्ख तो हम ही लोग हैं। तो फिर हमारा में जो होने का जो इंसान मूर्ख है, जैसे नमूना को बोल रहा है हमारे भाभी है लेकिन स्त्री है ना, पगला वाला। तो मूल है, मूर्ख है लेकिन
इंसान है, बकलोल वाला बात है। तो फिर इंसान क्यों लोग आओगे भाभी में कह रहे भाभी और किया है हम वाला बात है। और क्या जोड़ा जाएगा उसमें? नहीं जोड़ा तो कभी समझ में नहीं आएगा, जोड़ा जाएगा ना। अब सब भाभी और किया ना बोले तो रेस्पेक्ट ना देंगे, ये क्या मतलब है? बेटा और किया बोले रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो अब तक फुल में आर्टिकल लगाओगे, हाँ लगाना पड़ेगा। देखो बोला ना लगाना पड़ेगा नाउन के बिना। उसी में माइजर को ले लो, माइजर माने कंजूस, माइजर माने कंजूस। कंजूस कौन होता है? इंसान। दीवार कंजूस नहीं होता, जानवर कंजूस नहीं होता है, तो इंसान ही कंजूस होता है। और बहुत बड़ा बकलो नहीं करता है, ये करेंगे वो करेंगे, बचा बचा कर रखता है। अब आप में खाली हाथ चल जाता है, उसका बच्चा लोग पूरा भोगता रखता है। समझ लो कैसे कंजूसी करता है। और उसको भोग पाता है वो बाद में कंजूसी करेगा, जवानी में कंजूसी करेगा कि हम नहीं बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे। बाद में बचाते बचाते पैसा बहुत जमा हो गया, तो डॉक्टर बोला चीनी नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खाइएगा, भात नहीं खाइएगा, दूध नहीं खाइएगा। वो बचाया कोची के लिए, कहाँ का बचाया? और वही पैसा का भी दवाई खा रहा है कि हमारी चीनी कम हो जाए। तो अब बतला कंजूस कौन होगा? इंसान को। और उनका में जो रहा कंजूस इंसान, तो बेवकूफिया न है कि कंजूस सब इंसान हो रहा, कंजूस और इंसान बदल कर। उस प्रकार कुआर माने कायर, बुद्धि, डरपोक इंसान हो सकता है। जानवर मुकाबला करता है, जब तक अपने गली में रहेगा शेर बनकर रहेगा, कुत्ता शेर से लड़ जाएगा अपने गली में। लेकिन इंसान देखता है मौका, कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकते। आज के समय में 4 साल में मान गया लोग, माना ना बहाली होगा, ऐसा नहीं कि बहाली नहीं होगा, होगा ना बहाली। अब मतलब क्या हुआ? तो अब मतलब लिखने की जरूरत है कि मूर्ख इंसान ही होता है, कंजूस इंसान ही होता है, कायर इंसान ही होता है। लिखना बेवकूफी है। अब पूरा आर्टिकल कहाँ ना लगाओगे ये मतलब, पूरा आर्टिकल के लिए क्या चाहिए था? नाउन प्लस एडजेक्टिव। तो नाउन तो छुपा हुआ है तो लिखना पड़ेगा, खोलने की जरूरत होगा। मतलब फूल, माइजर और फॉरवर्ड बिना नाउन के आएगा और आर्टिकल लेकर। एक छोटा सा क्वेश्चन आया लेकिन टॉपिक उलझ के रह गया। एक एग्जाम होता है इंडिया का IES, मतलब जब तुम DIT IIT कर लेते हो तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंजीनियर बनने के लिए एग्जाम को फेस करना पड़ता है। उसके नाम है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जिसमें 100 नंबर का अंग्रेजी पूछता है। उसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछा, लड़का लोगन किया, क्या पूछा? टॉम कॉल्ड मी फूल। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, टॉम कॉल्ड मी फूल। लड़का भी पूरा खुश कि एडजेक्टिव है नाउन ना है, आर्टिकल तो नहीं ना लगेगा। अच्छा क्या आर्टिकल लगता, केवल एक का गलती तो होना क्या चाहिए था? टॉम कॉल्ड मी ए फूल। क्लियर? नोट कर। कॉवर्ड COWARD, कॉमा फूल, कॉमा माइजर MISER, माइजर नाउन के संग नहीं आएंगे, नाउन के संग नहीं आएंगे, फिर भी अपने पहले A/N लेंगे, A/N लेंगे। जैसे टॉम TOM, टॉम कॉल्ड मी फूल FOOL, टॉम कॉल्ड मी फूल। फुल स्टॉप करो, कुछ गड़बड़ है? क्या करोगे? फूल के पहले ए जोड़ लिए। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं परसों, जा सकते हैं। कल एतवार में है।